Yes, Khushi, over to you. First of all, thank you so much. And I really appreciate the kind of hairstyle that you have. It's funky, it's cool, right? It's lovely, lovely, Khushi. Lovely joining in. Yeah, go ahead. Thanks a lot for your warm words. And so let's begin quickly. I don't want to waste much of your time. And Yeah. thanks a lot for accepting my invitation. And this is the season two of my podcast, that is the Women's Stories, where I bring extraordinary stories of unconventional women like you. So let's deep dive into the conversation. My first question for you is to just explain the products of IncubeSense in a layman language, because I'm not from a computer science background. So it was hard for me to understand the vision and mission of the company. So over to you, Diksha. All right. So first of all, thank you, Khushi. It's lovely. I'm always there for my women community. जो भी है, जब भी है, सिर्फ नारी शक्ति के लिए है. All right. So Khushi, over to the question that you asked. Very simple, very layman language. Technology कभी भी इंसानों को कन्वर्ट या बोल सकते हैं रिप्लेस नहीं कर सकता. टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज एन इनेबलर टू पीपल एंड टू देयर प्रोसेस, राइट? सो आई थिंक वन थिंग, जस्ट टू एक्यूमुलेट, हम लोग पीपल मैनेज करते हैं, पीपल का प्रोसेस मैनेज करते हैं. द मोमेंट यू कम इनसाइड टू द बिल्डिंग, मे बी इन ऑफिस, मे बी एनी ऑफ द वर्क प्लेस, द मोमेंट यू मूव इनसाइड, वहां से आपका सारा प्रोसेस, सारा पीपल फ्लो, राइट, अंदर आने का, उसके बाद Mhm. हाउस कीपिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन वी कॉल इट फैसिलिटी मैनेजमेंट. तो ये सारे जो मैनेजमेंट होते हैं वो इनक्यूबसेंस करता है. अब बात करते हैं करता कैसे है. सो लेट मी Mm. टेक इट वेरी क्विक. तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन that people talk about software, but software से ज़्यादा important है. Software is also a helpful tool, but more than that, कहाँ से आप data consume करोगे, that is hardware. Just like we have a phone, right? Phone से आपका data जाता है, enable करता है the software that we have on the top of operating system, and then it becomes a meaningful data. Correct. So similarly, IncubeSense is manufacturing two things. One is your hardware, and second, we are creating softwares as well for complete people management flow, HR, facility management, and you have space management, and Mhm. yeah, so that's what we are doing. Yes. That's wonderful to hear. And I also saw one of your video where you said that you are planning to expand in CubeSense, and you will soon bring automated washing machines and TVs. And I think in CubeSense would be first company, and especially a women-run company, to bring such products in India. Yes, yes, true. Yeah, and the second question for you is, can you please elaborate on green computing? Because I really don't know anything about it. ओके. ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है कि जैसे हम ग्रीन बोलते हैं, भी Mhm. हम लोग ट्रीज काटते हैं तो वी ऑलवेज से लाइक यू नो वर्ल्ड को बचाना है और ट्रीज काटना है, प्लास्टिक्स यूज नहीं करना है. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ कचरा. एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा Hmm. बन जाता है, राइट? तो हमें उसको बचाने के लिए वी मेक श्योर दैट द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट वी मेक और मैन्युफैक्चर हैज टू हैव दोज प्रोसीजर्स. ROH कंप्लाइंट होना चाहिए, सो एंड सो फोर्थ होना चाहिए, प्लस उसकी जो लाइफ है इट हैज टू बी गुड. ऐसा नहीं कि मैंने 3 साल के लिए प्रोडक्ट खरीदा और फिर मैंने खराब हो गया, मैंने खत्म कर दिया उस प्रोडक्ट को, तो वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रैश हो जाता है. Okay, you cannot process. And let's talk about recycling it. Okay, तो भारत में या कहीं पे भी recycling of electronic resources also like they are struggling with this. तो तो जब हम बात करते हैं green computing की, so green computing is itself save energy. Like you must have heard Google का green initiative क्या है? It is Blackle. ओके, व्हेन यू टाइप ब्लैकल तो आप ब्लैकल के अंदर सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो. सिमिलर, बिकॉज वो ब्लैक होता है, इट सेव एनर्जी. Okay, so that's one. So green computing is all about saving energy and saving planet. So that's what about green computing. And the mission that we are going forward in CubeSense, we are making electronics with high quality, हम काफी high quality बनाते हैं. और दूसरा, we make sure that it will last long. Always we are not here for कि हमने जल्दी जल्दी बेच दिया, or that has happened, and not going to that way. But quality is very important. You cannot and never compromise on quality. The more you compromise on quality, the
the weaker you become as a company and the weaker you become as a electronics company, I would say. So I think that's pretty much of it. My take on people who actually think about making green computing, I think green initiative हर एक इंसान को लेना चाहिए. It should not like अगर एक company X है वो resource पे काम कर रही है तो उसकी duty बनती है. I don't think so. We believe that when we talk about, you know, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दो, चीजें ऑफ कर दो, वो हम कर रहे हैं. सो आई थिंक ग्रीन इनिशिएटिव इक्वल्स टू पीपल, as people it's our responsibility to save electricity, to also, you know, consume उस क्षेत्र में आप जाइए जहां पे आप you know, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें, इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं और ऐसे रिसोर्सेज बनाए. अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर में कैसे होता है ग्रीन कंप्यूटिंग. अब आप जब सॉफ्टवेयर में कोड लिखते हो, अगर वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, दे कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, सो इट इज टेकिंग लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सर्वर. So let's reduce that. Lot of things that we can do in green computing, but the only crux of it is saving electricity, saving the power to save the mother nation. So that's all about green computing. Yes, over to you, Khushi. That's so wonderfully explained, but still I have a little stupid question. I hope you will not laugh at me. Do you have like planned a process, typical process to revive the products, you know, your products, or you know, there must be in future some waste would be produced from your products also. So how will you revive that waste and how will you bring it back to your system and recycle it? Absolutely, a good question. I think everybody should learn. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक चिप है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप आप बनाते हो, इट हैज टू बी रीयूजेबल. सारे कंपोनेंट्स उसके खराब नहीं होते, करेक्ट. आपके कुछ कंपोनेंट्स खराब होते हैं. सो वी हैव अ प्लान, वी ऑलरेडी इज इन पाइपलाइन, वी आर वर्किंग ऑन व्हाटएवर प्रोडक्ट is not in use, not because the product is all trash. कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का कोई एक पार्ट नहीं चलता है तो सारे उसके सर्किट्स काम करना बंद कर देते हैं. दैट इज अ व्हाट वी कॉल डेडलॉक आ जाता है इफ यू टॉक अबाउट, राइट. अब क्या होता है, रिसाइकलिंग के प्रोसेस में हम उस चीज को वापस लेंगे, ओके, और वी नीड टू रिसाइकल दैट. जो यूजफुल कंपोनेंट्स है उसे निकाल के वी कैन डू दैट. सो ये एक पूरा साइकिल होता है आपका रिसाइकलिंग प्रोसेस एंड कैन बी रीयूजेबल. और जो आपका रेसिड्यू बच जाता है उसको आप दो तरीके के रेसिड्यू होते हैं, एक यूजेबल और एक नॉन यूजेबल. नॉन यूजेबल को आप सेंड कर सकते हो फॉर जिसमें हैवी मेटल्स या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, बट वी डोंट यूज इट, वी ऑलवेज गो फॉर गुड मेटल्स व्हिच इज हाईली कंज्यूमेबल, ओके. और या फिर ट्रांसफॉर्मेबल और रिसाइकेबल. तो जितने भी लोग मैन्युफैक्चर में काम करते हैं, दे शुड हैव अ पॉइंट कि वो लेड का इस्तेमाल न करें, लेड फ्री प्रोडक्ट्स बनाएं, ओके. तो जितने भी पीसीबीज है, अगर हम पहले से ही निर्माण करते वक्त ही, मैन्युफैक्चर करते वक्त ही अगर हम ऐसी चीजों का चुनाव करें जिसको रिसाइकल और कंज्यूमेबल और डिस्ट्रॉयबल किया जा सके, आई थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस. ओवर टू यू, खुशी. Yeah, thanks a lot for this well-defined explanation. And I'm a biology student, so I can relate some parts of it from chemistry, you know, and that to what I learned in class 12. So yeah, I'm able to relate a bit, but yeah, thanks a lot for the explanation. So the next question for you is, why did you like, it's all, I think it might also be one of these stupid questions, but let me ask from you. Why did you choose mobile as a source of contactless experience? I was just brainstorming yesterday, like what if it was something like InCubeSense could, you know, scan eyes of the people who are checking in and check out. It would have been a real like 0% contactless experience, because sometimes like as a biology student, we kind of transfer microbes to mobile also, and when the mobile is touching to your you know, to your system, to your product, it can contaminate it, it can transfer the harmful microbes to it. So like why did you only choose mobile, why not eyes or something like you know, that? Good question, Khushi. First of all, you should stop saying that it's a stupid question. No question, I think not even a single question is stupid. Every question has a meaning. So no problem. Don't say that. All right, coming back to this. Yes, first of all, we should understand InCubeSense जितने भी product बनाता है उसमें touch की जरूरत नहीं होती. If say for example, this is my IncubeXS और Nanha product, आपको phone touch करने की जरूरत नहीं होती है. तो यहाँ पे हम लोग इतने distance पे काम करते हैं, तो touch वाला तो question चला गया, right? So touch तो होना ही नहीं है. दूसरी बात अगर हम आते हैं, where why we are doing everything mobile based.
most of the thing, 90% thing mobile based. The reason is that it is mobile. It is mobile, right? So mobility के तौर पे this is important to use it. सबके पास है आज के time में, तो क्यों ना हम उसको utilize करें. Second point, where your question as a biologist and a question as a bio student is perfectly good, is like हम आंखों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, correct? बट इफ यू थिंक, भगवान ने सारे इंसान को यूनिक बनाया है. यूनिक कंपोजिशन क्या होता है? आपके क्रोमोसोम्स, आपके हेयर का एक्स वाई एक्सिस, राइट, और आपके फेस के पैटर्न्स, और आपके आई के अंदर का जो पैटर्न है, दैट इज यूनिक. यू अग्री? करेक्ट. बट अगर मैं यूनिकनेस, अगर दीक्षा की आइडेंटिटी मेरा फेस है, यहाँ पे अगर आप एक्स और वाई और इसका 3D टेक्सचर निकाल के आपके सामने रख दो, और अगर मैं 3D टेक्सचर बना दूं, दिस इज नॉट मी, दिस इज माई 3D टेक्सचर. 3D टेक्सचर एग्जैक्ट मेरे पॉइंट्स एंड एवरीथिंग इज दिस. अब मैंने इसी को कैमरे के आगे लगा दिया, आई कैन एक्सेस इट. इज एग्जैक्टली सिंपल वेज. अगर मैं इससे अपना पिक्चर लेती हूँ, आई विल शो यू वेरी क्विक. मैंने इसमें कैमरा ऑन किया, ठीक है, आपको दिख पा रहा है. यहां से मैंने अपना पिक्चर लिया, ये देखिए, आई कैन सी. यहां से मैंने अपना पिक्चर लिया. लेट मी क्लिक माई पिक्चर. देयर यू गो. कैन यू सी माई पिक्चर? थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देते हैं. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. जस्ट अ मिनट. यू कैन सी माई पिक्चर, राइट? अब मेरे को कुछ नहीं करना, इस पिक्चर को मैप करना है dots and phase. Are you there, Khushi? Yeah. Okay, you're actually still for me. All right, no problem. Just keep nodding so that I can know you're there. All right. So face recognition में, या image, पहले image की बात करते हो, फिर मैं रेटिना पे जाती हूँ और आइरिस पे जाती हूँ. तो अगर फेस आपका यूनिक है, फेस के डेटा पॉइंट्स मैंने लेकर फेस का एक मास्क मैं बना सकती हूँ, विच इज अ 3D मास्क, एंड इट इज इजी. किसी भी टेक्नोलॉजी का आना उस टेक्नोलॉजी का तोड़ भी लेके आता है. यू अग्री? अगर कोई टेक्नोलॉजी स्मार्ट है, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ उसका नॉन स्मार्ट भी आ जाएगा, कि भाई तुम्हारे पास एक ऐप है और आप ऐप से फेस का रेप्लिका बना सकते हो. इट्स इजी, राइट? द मोमेंट, एंड इट्स वेरी स्कैरी. I run this privacy ki pathshala every Wednesday with Tapsi Johri, with security expert and panelists like Dinkar के साथ हम लोग बात करते हैं, इसी बारे में बात करते हैं कि आपका फेस पॉइंट इज यूनिक एंड कैन बी कॉपीड एंड मेक मल्टीपल ट्रेसेस आउट ऑफ इट. द मोमेंट यू मेक मल्टीपल ट्रेसेस, खुशी अगर दीक्षा का फोटो विथ ट्रेस लेके अगर कैमरे को दिखाएगी, तो खुशी दीक्षा के नाम से अंदर जा सकती है. And that's the biggest challenge. The second biggest challenge, which I really want to bring before the iris wala part, the second biggest challenge, Khushi, is if you believe, अगर दीक्षा है, और दीक्षा और सभी फीमेल कम्युनिटी को एक प्रॉब्लम होता है, मैं अपना फेस क्यों दिखाऊं? बिकॉज जो चीज हम देख नहीं रहे, एक तो हमने बात की इसकी, ये कॉपीड हो सकता है, मेक लॉट ऑफ कॉपीज, दैट इज वन. द सेकेंड बिग चैलेंज इज फीमेल आर प्रोन to get identified pretty quick and victimized pretty quick. If say for example खुशी के साथ कोई बंदा है, okay, और वो चाहता है कि दीक्षा को हम स्कैन करें और ये देखें कि दीक्षा अभी कहाँ पे है, क्या कर रही है, और दीक्षा जो मेरी इमेज है वो मैं हूँ, इक्वल्स टू कौन है. जस्ट लाइक वी हैव दोज येलो पेजेस. पहले we have येलो पेजेस की बुक ना, और आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, वो जाता है येलो पेजेस में, ढूंढता है who is that सारा कौन है, right, and he shot that person immediately. Similarly, machine is a boon plus it is everything. हर चीज का pros and cons है. तो अगर मुझे दीक्षा का, मैं आपका एग्जाम्पल नहीं लेती, मैं खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मेरी इमेज एक पब्लिक डायरेक्टरी बन जाएगी, तो आपको नहीं लगता फिर किस हिसाब से हम बोलते हैं कि फेस से आप अनलॉक करें? If any data, if your address is your public identity, if your phone is the public identity, face is your public identity, I can probably hack your Aadhaar card, I can hack your bank account, I can hack anything which is connected with the public identity. Is that simple? Right? So ये तरीके हैं. और अगर मुझे किसी फेस, मैं बोलना चाहूंगी, और आई एम श्योर यू शुड नॉट कट दैट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट बनता है फेस रिकग्निशन, बहुत बड़ा पार्ट बनता है. मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ नेट का प्रयोग करते हैं डेटा निकालने के लिए, डेटा इक्वल्स टू फोटो, दैट्स इट. And this data I want to kill someone, this data I want to hack someone, that's it. So किस तरीके से हम बात करते हैं हम सेफ हैं जब कोई भी लड़की फेस दिखा रही है, किसी भी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ फेस को, कॉर्पोरेट में लगा हुआ फेस अटेंडेंस मशीन को, कैसे, क्यों?
थर्ड थिंग दैट वी हैव टू थिंक अबाउट खुशी इज लाइक, चलिए ये दोनों मैंने आपको बताया, पर उस डिवाइस में जो भारत में बना ही नहीं है, क्या हमने उसे खोल के देखा है कि उसके पीसीबी में डेटा कहाँ जा रहा है? पहला डेटा तो जा रहा है आपके सर्वर पे जो कॉन्फ़िगर्ड है, दूसरा डेटा हर एम्बेडेड के अंदर एक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग होती है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की जा सकती है दो डेटा दो जगह भेजने के लिए, एक सोर्स 1 और सोर्स 2 आपके ऑफिस। तो जो सोर्स 1 डेटा जा रहा है वो एम्बेडेड के अंदर हम लोग कहीं भी भेज सकते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है जो लोग देख ही नहीं रहे हैं, एंड दैट्स वेयर आई ऑलवेज बी वोकल अबाउट थिंग्स, नॉट गोइंग विथ फेस, बिकॉज दीज आर द चैलेंजेस। अब बात करते हैं खुशी, द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू टॉक अबाउट आइरिस, तो क्या, मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, कैन यू चेंज योर फेस? No. Can you change your iris? No. Then how come that is which cannot be changeable? वो आपका पासवर्ड कैसे है? Can you change password? Yes, you can do million times, right? अगर मेरा फेस ये है, I cannot change, तो खुशी को पता है ये दीक्षा है, अगले जन्म में क्या कौन सी दीक्षा होगी वो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, बट इस जन्म में तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दीक्षा दीक्षा है, राइट? एंड से फॉर एग्जांपल आई गिव यू टेररिज्म वाला एंगल भी, ओके? होगा क्या कि कोई भी बंदे के पास पता है, इसकी पिक्चर है, उसका एड्रेस और जीपीएस लोकेशन पता है, जाके इस बंदे को बॉम्ब डाल दो या शूट कर दो। दिस इज वेयर the next level of terrorism is not where we physically fight, it is like cyber terrorism. Getting my point? So hence the reason face is tough. And when people say कि यार मैं iris और face तो मेरे location पे ले रहा हूँ, बुद्धू हैं वो लोग। मेरे location पे लेना, it's not belongs to you. मेरे लोकेशन पे तभी होगा जब आपके भारतीय, जैसे हम लोग कोई पीसीबी डिजाइन करें और उस पीसीबी के अंदर आप एक्चुअल में देखो कि वो क्या है। जब हम लोग सब्जी भाजी लेते हैं तो हम देखते हैं, कट करके देखते हैं, पिघला नहीं है, गला नहीं है, सड़ा माल नहीं दे रहे, तब हम पे करते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देख के समझ के क्यों नहीं लेते डेटा, right? So that's very important, Khushi. That's my concluding statement. If anybody is going for face iris, make sure that face you cannot change ever. Once the data is released, it is released. Second pointer, there is nothing called a fixed privacy laws, and there is nobody who is actually regularizing these laws. Say for example, Khushi और मैं बहन हैं और हम एक ही corporate में काम कर रहे हैं, and my data got compromised. You will feel unsafe at end of the day. करेक्ट? इफ माई डेटा इज कॉम्प्रोमाइज्ड, हु आई एम गोइंग टू, अगर मैं पुलिस के पास भी चला जाऊं वो तो बोलेगा कि बिल ही नहीं है, देयर इज नो रूल्स इन regularization. Then how come, where is my privacy? You may understand that Diksha is going to a restaurant, Diksha is going to a hotel, Diksha is going for a speaking session, Diksha is going anywhere, I'm being tracked. And anything can happen to me and I'm victimized in that particular sense. So I think that's a question. Iris, any physical identity of your body is a problem for yourself, is a problem. Why we are giving our body features to someone and it is a public data? Your body, you are not public property. That is the end of the statement. Facial data and your face, your iris is not a public property. Let's stop and let's make people aware about your privacy. Yeah, over to you, Khushi. I mean, yeah, Yes. that was a lot of knowledge, and I can now Yeah. now I can clearly understand why we should not use iris or face contours as a password. And yeah, of course, I completely agree. Cyber attack and bio war would be the next biggest war that they can cause next biggest wars, and that is quite scary to think. But I think we can just put it aside by not thinking at this moment, because it is really scary to think. Absolutely, Khushi. Yeah, go ahead, please. So what is the ideal mindset and process in your opinion to make a business plan scalable? All right. Okay, तो कोई भी चीज scalable होता है, so it is fine that I'm going to say in a lot of Hindi and mix English because I want to cater a lot of people, okay? Mm-hmm. All right, awesome. Thank you, Khushi. So the point where we can make anything scalable, be it a pizza wala business, be it a burger wala business, or be it electronics. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने electronics में क्यों शुरू किया। तो हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, तो जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, if people talk about data is the new oil, it's not the new oil, it's old. Infrastructure is the new oil. Okay, when we talk about infrastructure, जिसका infrastructure है उसका ही future है. So that's one. So when we talk about भारत में ही हमने क्यों शुरुआत किया, आप सोचोगे खुशी कि अगर if you're my mom, okay, and I did my masters in electronics,
इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किया, बट कैन यू नेम वन कंपनी जिसमें आपको एज अ कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब मिलेगी? इट्स नॉन, इट्स नॉन। आपको बिठा दिया जाएगा, अच्छा आपने मास्टरी किया है, चलो आप कॉल सेंटर पे बैठ जाओ या सीसीडी में सर्वर बन जाओ। वी हैव zero job of core electronics right now in India. If we talk about freshers, फ्रेशर्स को तो बिल्कुल नहीं मिलता। आपको या तो R&D पे बिठा देते हैं, कंपोनेंट सिलेक्शन कर लो, या पीसीबी में बस किसी का साइड पार्टी हैंड बन जाओ। बट मुझे पता है कि अगर आप में काबिलियत है तो आप स्क्रैच से पीसीबी डिजाइन कर सकते हो, आप उसको स्कीमेटिक डिजाइन कर सकते हो, और आप उसको एंड फिनिश प्रोडक्ट, या डीएफएम और डीएफसी का कॉन्सेप्ट है, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फॉर कॉस्ट, इन सब कर सकते हो when we talk about manufacturing of a PCB or a hardware product as a finished product. Okay, so that's one. तो मुझे लगा कि क्यों ना कोई पहला कदम डाला जाए भारत में कि मैन्युफैक्चरिंग खड़ी करें। अब मैन्युफैक्चरिंग खड़ी करने में कितने लोगों को जॉब मिलेगी? आप सोचिए, एक तो आप मास्टर्स को जॉब दे रहे हो जो कोर चाहते हैं कि नहीं मेरे को पीसीबी खुद से बनाना है, एक तो उनको। दूसरा, कितने सारे मशीन्स ऑपरेटर को जॉब मिलेगी, राइट जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, 200-2000 लोग काम करते हैं जो आपके पीसीबी को बर्न करके आउट करते हैं, राइट कितने ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी व्हेन दे आर टेस्टर्स, व्हेन दे आर ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, सभी तरीके के जॉब्स, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, वी आर गुड इन सॉफ्टवेयर। इंडिया इज नोन फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर इन सॉफ्टवेयर, बट एंड कंज्यूमर्स ऑफ कोर्स, बट क्या इंडिया को इस मकाम पे नहीं जाना चाहिए कि वो खुद एक मैन्युफैक्चरिंग पीसीबी या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, राइट तो मेरा वही सपना था। मैं चाहूंगी कि जितने भी देश में मुझे लोग सुने या प्रोत्साहित हो, मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज में इन्वेस्ट करें, इस चीज में निवेश करें जो भारत की जीडीपी का विकास करे, नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर में आप काम करो, पैसा तो यूएस जा रहा है, पैसा तो आपका कहीं और जा रहा है ना, द प्रॉफिट इज गोइंग समवेयर। आई थिंक मेरा होल मुद्दा ये है, आप यहीं पे काम करो इंडिया में, इंडिया के लोगों के लिए काम करो, और जो प्रॉफिट है वो भी इंडिया में जाए, इंडिया के लोगों में जाए। सो दैट्स द मोटिव एंड हेंस वी स्टार्टेड दिस इनक्यूबसेंस वेंचर, राइट करेक्ट। अब इसको स्केलेबल कैसे ले जाए? हाँ जी, अब खुशी इसको स्केलेबल कैसे ले जाए? तो कोई भी प्रोडक्ट, बी इट लाइक 300 करोड़ आपने किसी से लिए और आप उसको स्केलेबल कर रहे हो, इट्स नॉट स्केलेबल। मनी cannot make a company scalable. Okay, post sales और आपका pre sales, आपका relationship with people, with customers, making your product scalable. Second point, so first point was that, okay, second point, making product scalable is like you're understanding the people's point. अगर मैं खुशी के पास बैठी हूँ, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, नहीं बेचूंगी, I should not force you. Rather, I sit with you, understand exactly what your requirements are. Okay, and I can tweak a little bit or customize a little bit according to your requirements so that you'll be happy customer, right? So I think दो बड़ा मेन मुद्दा है। स्केलेबल जाने के लिए पैसा जरूरी है, बट मेरे लिस्ट में पैसा जरूरी नहीं है। If I'll talk about myself, I've completely bootstrapped, and now this we are touching 4 years. It's just 2 months away. So हमारा बर्थडे हो जाएगा, एनिवर्सरी तो 2 महीने की अंतराल है, बट 4 साल हमने स्केलेबल किया है सिर्फ 2 ही मूलभूत मिशन, या आप उसे प्रिंसिपल्स बोल सकते हो। पहला, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, loving the relationship, and second is your, which is very important, is understanding customer and giving a जबरदस्त post sales. जबरदस्त पोस्ट सेल्स का मतलब है कि अगर खुशी मेरी कस्टमर है, मैंने आपको बेच तो दिया, बट आई एम नॉट कमिंग बैक टू यू, आर यू हैप्पी, डू यू नीड एनीथिंग? इससे भी ज्यादा जरूरी है इम्प्लीमेंटिंग एज पर यू। लोग एक्शन लेना भूल जाते हैं, लोग पूछ तो लेते हैं फीडबैक, पर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, हो गया ना फीडबैक, खत्म, I got 25 feedbacks. But are we converting those feedback in a meaningful data or something that my customer is required? Or Khushi will be khush, right? End of the day, you will be happy that, okay, Diksha had made the changes that I really wanted. So I think that is important. ये दो मिशन, ये दो महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स अगर किसी भी कंपनी ने अप्लाई किया, वो स्केलेबल कोई नहीं रोक सकता। 10x, 100x and 2000x is always fixed. Over to you, Khushi. That was something new I learned from you, optimizing the feedback into something scalable and seeing feedback as an asset which can be monetized later on. So that was something new. Thanks for sharing that. So the next question for you is, when did you exactly... Thank you.
realize that you want to devote your life to Atmanirbhar Bharat mission? There must be an incident that provoked you to chase this. Yes, absolutely true, Kushi. So what happened? ये बहुत उम्दा question है. Thank you, Kushi. I would really want to congratulate you and celebrate this part that आपने अच्छा research किया है. You did a good research about me, and these questions are really close to my heart. All right. So Kushi, coming back to Atmanirbhar Bharat, तो हम लोग Atmanirbhar Bharat 2000 पोस्ट कोविड नहीं कर रहे हैं, हम प्री कोविड 2017 से ही हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर हैं और हम इस मुहिम को काफी लोगों में प्रसार प्रचार कर रहे हैं इन टर्म्स कि आप लोग सहयोग करें. जब हम बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल, इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं. वन इज एन आत्मनिर्भर भारत एंड सेकंड इज अ वुमेन कम्युनिटी. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन कम्युनिटी, आपको नहीं लगता कि हमें एज अ वुमेन ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं विमेन हूँ और मेरे को बड़े प्यार या दया भरी नजरों से देखना चाहिए? वो नहीं चाहिए. वी डोंट वांट दैट. व्हाट वी वांट इज to all those people who look up to a woman leader or a woman entrepreneur, I think they should appreciate what these guys are doing, these beautiful ladies are doing, and they should purchase the product. The moment you purchase the product, it will go back to the GDP. अगर आप भारत में कुछ कर रहे, if I'll take my example, I will appreciate people to love it. I will, क्योंकि होगा कैसे? आत्मनिर्भर भारत तभी होगा. लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर, पर अगर आप इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आप बाहर दे रहे हो या बाहर मैन्युफैक्चर आप इंडिया में दे रहे हो, पर प्रॉफिट तो बाहर जा रहा है ना. We need to understand if company A is there. If company A is there, whatever you manufacture, whatever Indian people should consume that. The moment they consume, उससे आप लोग अपनी सैलरी दे पाओगे. सैलरी का पैसा उनके घर में जाएगा, एम्प्लॉयमेंट्स के घर में जहां पे भी वो जाते हैं वहां खरीदारी करेंगे और वो पैसा इंडियन खरीदार्स के पास जाएगा रिटेल सेगमेंट में और उनसे घर. तो ये पूरा साइकिल होता है, राइट? तो जितना भी बेनिफिट एक कंपनी करते है उससे ज्यादा बेनिफिट लोगों का होता है जो इंटरनली इंडियंस है. So that is one point. So when we talk about आत्मनिर्भर भारत, हमें ये समझना होगा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि इंडियन प्रोडक्ट्स या इंडियन उत्पाद को सपोर्ट करना. उनको सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, उनको परचेज करना. The moment you purchase it, that money goes to Indian salaries. That money goes to your own retail shops, your own भाई बहन, right? So वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप इंडियन कंज्यूमर्स, इंडियन कस्टमर्स सपोर्ट करें भारत के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और भारत में जो लोग क्रिएट कर रहे हैं उसको सपोर्ट या समर्थन दे और उसको खरीदे, कंज्यूम करे. क्योंकि मैं चाहती हूँ, भारत में बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत विदेशी ब्रांड्स यूज करते हैं. इंडिया इज द टॉप कंज्यूमर इन द मार्केट, राइट? इन कंप्लीट वर्ल्ड इंडिया इज द टॉप फर्स्ट कंज्यूमर. बट ऐसा क्यों होता है? क्या हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं कि विदेशी इंडिया से टॉप इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर विदेशी है? क्या हम ये चेंज कर सकते हैं कि वो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स को कंज्यूम कर रहे हैं सबसे ज्यादा आउटसाइड इंडिया? दैट कैन बी डन. बट पहला इतना बड़ा क्यों सोचे? पहले हम ये क्यों ना सोचे कि भारत के लोग भारत को सपोर्ट करें, भारत के बेटी और बच्चों को मैं ये नहीं कह रही सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करें, पर जो भी लोग भारत में काम कर रहे हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो उनका जीना, एक होता है ना कि आप बस जी रहे हो, बट आई थिंक आप खुशी से जी रहे हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. तो उनको क्या बोलते हैं प्रोत्साहित होंगे, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड ऑलवेज बी ओपन and lovable to our people first, okay? Compassionate towards our people first. हम लोग को दंगल मूवी में हमने पूरा मूवी देखा. एक फादर होते हैं, बड़े गरीब होते हैं और वो अपने इतने ब्यूटीफुल बेटियों को पढ़ाते हैं, पर उनको एक विजन था कि ये बेटी मेरे ओलंपिक्स में मेडल लेके आएगी. पर क्या आपको लगता है खुशी 3 घंटा काफी है उस पेन, उस दर्द और उस पैटर्न को दिखाना? इट्स वेरी डिफिकल्ट. 3 घंटा किसी भी एक इंसान के 30 साल नहीं कंज्यूम कर सकता, नहीं दिखा सकता कि उस बच्चियों पे, स्पेशली जब बोलते हैं कि आप नाखून छोटे कर लो, बाल कटवा लो, एंड यू नो ऑल दीज absolutely different from the orthodox thinking and legacy based thinking, and you do lot many things. आज भी यही सोच है. जब वुमेन अपने लिए कुछ खड़ी होती है, स्टैंड लेती है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है. आज भी यही है. I'll be telling you very honest, as a businesswoman, as a top notch executive leader in any of the organization, or maybe a homemaker,
homemaker free की job नहीं है. I think it should be respected. It should be compassionately felt कि आप घर भी संभाल रहे हो, and it is equally challenging and it is equally important, just like outside work. Right? So I think जब तक हम अपने लोगों को support ना करके सिर्फ पोस्टर पे लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत, नहीं change होगा. This video, I think if everybody is listening to me, please support Indian entrepreneurs and please purchase their products. They will feel really happy and it's going to help Indians only. So that's one. I think rest जो आपने बात बोली कि हम लोगों ने क्यों मिशन स्टार्ट किया, बस दिल में एक ही मिशन है, खुशी. मैं उस दिन बहुत खुश होंगी जब मेरे साथ मेरे मिलियन भाई जो मेरे इंडियंस के भाई बहन हैं वो खुश होंगे, and I'll be most happy when this India I'm able to make Indians proud, I'm able to make more jobs, I'm able to make India the next electronics hub. That time, this is my mission, and I'll be most happiest on the planet Earth if these three things I'm going to achieve in next coming years. Over to you, Krushi. That's so beautifully said. I was so engrossed into the answer. और मैं तो चाहूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्यों, मतलब सब कुछ भारत में ही मैन्युफैक्चर और सब कुछ भारत से ही जाए, वो तो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होगी. और अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपनी टिप्पणी भी रखना चाहूंगी. आई एम अ कंटेंट राइटर एंड by profession. So so people out of India reach out to Indian content writers specifically because they charge too less for the quality they bring, and I believe that they are bringing a great quality onto the table, and they are providing premium content as with in comparison to the content writers who are working out of India, and that's a little sad to hear because I'm not charging as per my location. I'm charging what I'm bringing onto the table, and I deserve to be paid accordingly. So that's where I can relate to you completely. And yes, because Indian needs to stand for the quality and for their work ethics, because Indians really have true deep-rooted work ethics. So they absolutely needs to be respected for that. एंड आई थिंक खुशी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, बट मुझे इसमें एक और पॉइंट देना है कि ये एक गलत धारणा है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई कंप्लीटली असर्टिव अबाउट इट एंड आई डिसएग्री दिस पॉइंट दैट इंडियन क्वालिटी नहीं देता. इंडिया किसी भी चीज में क्वालिटी नहीं देता. हाँ, होता है. देखिए, ऐसे तो काफी विदेशी प्रोडक्ट है, आप मैं नाम नहीं लूंगी, बट आप चाइना का माल खरीदते हो, वो क्या वो क्वालिटी देता है, बट वो सस्ता है. मैंने तो यही बोला कि बहुत क्वालिटी देता है, बट लोगों का नजरिया मुझे नहीं पता वो कहाँ से प्रोग्रामिंग सेट हो गई है उनके अंदर. देखिए, आप और मैं मिलके ही ये नजरिया चेंज कर सकते हैं. तो आई थिंक जितनी ज्यादा हम सही कम्युनिटी क्रिएट करेंगे, लाइक माइंडेड पीपल से बातचीत करेंगे, तो आई एम श्योर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ड ऑफ माउथ. जो भी आप बोलते हो, तो वर्ड ऑफ माउथ इज मोर पावरफुल देन द एक्चुअल मार्केटिंग इन एक्चुअल एनी ऑफ द कमर्शियल्स. सो आई थिंक यस, पीपल आर चेंजिंग. आपके जैसे यूथ, मेरे जैसे यूथ चेंज हो रहे हैं. बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है. स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स आर स्टैंडिंग एंड दे आर वेरी असर्टिव फॉर देयर ओन राइट्स कि मुझे ये करना है. लड़ना नहीं है हमें, बट हमें अपनी चीजों के लिए खड़ा रहना है. हमें अधिकार भी नहीं मैं बोलूं, क्योंकि हमारा अधिकार कोई छीन भी नहीं सकता. मैं नहीं बोलूंगी अधिकार. इट्स जस्ट कि इफ आई सेड समथिंग व्हिच इज राइट, इट इज टू बी वेल हर्ड. सुनना पड़ेगा. So that's very important, where we should actually say something. And ऐसा नहीं है ना कि अगर खुशी आप स्माइल नहीं कर, से फॉर एग्जांपल दीक्षा अगर स्माइल करके असर्टिव बात बोल रही है, तो वो बुरी कहलाई जाएगी. वो बोलेगी यार दीक्षा देख कितना एटीट्यूड है, दिस से दैट है. बट आई थिंक women are bossy, and please accept it. Right? You can't say it. She cares for family, the kind of company she brings, a lot of diversified kya bolte hai, qualities to a workplace. I think that's very important and should be respected. And people don't respect, jaane do. Kuch nahi kar sakte. Right? Exactly. So you should just grow and grow and grow bigger. I think that's the main thing. Don't listen to people who don't value you. You value yourself. That's more important. Absolutely. Over to you, Khushi. I completely agree. So the next question for you is, would you be implementing information of things, that is IoT, in your business in the coming days? Because IoT is quite in the buzz nowadays. Yes.
All right, खुशी, good question. सबसे पहले तो जो भी लोग सुनेंगे मैं उनको लिए थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं कि IoT नया नहीं है. IoT 1990s और 80s और 90s के बीच में ही आया था. It's just कि हमें awareness नहीं था because computers ही नहीं थे, internet नहीं था and lot of things. But IoT present started in 1990s. Yeah. वहां से रिसर्च पेपर में काफी जर्नल्स में काफी IoTs की बात हुई और IoT को हम अगर सही टर्म्स में प्रोनाउंस करें या सही टर्म्स में देखें तो उसका मतलब होता है कनेक्टेड डिवाइसेस. So when you go to US, so I've been to Massachusetts Institute of Technology as a boot camp. So we got selected. तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि US में IoT नहीं बोलते, they talk about connected devices solutions. They don't say IoT based solutions. So that's one point. Second point is when we talk about connected devices, I think phone is quite a good example when we talk about IoT devices. Phone है, hardware है, application है, Wi-Fi से connect हो रहा है, हो गया connected devices. करेक्ट. अब फोन के अंदर दो चीजें होती है, इसके अंदर यहाँ पे इंफ्रारेड होता है और आपका साउंड और बाकी सारे. तो किसी भी चीज में सिंपल तरीके से समझते हैं, किसी भी इंटरफेस के इधर से इनपुट आना, इधर से आउटपुट जाना, दैट्स IoT, दैट्स कनेक्शन. सो नथिंग इज वेरी हार्ड एंड फास्ट. अब इसका यूज केसेस डिफरेंट हो जाता है कि मैं गाड़ी के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं वॉशिंग मशीन के लिए यूज कर रहा हूँ, ऑटोमेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो वो यूज केसेस है. दैट इटसेल्फ इज नॉट कनेक्टेड डिवाइसेस, दैट्स अ यूज केस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस. But if we talk about connected devices in just one line, is anything which is connected to internet or the cloud. That's it. Data, कुछ भी आप डेटा कहीं से भी उठाओगे, उठाने के लिए आपको एक हार्डवेयर की जरूरत है. सॉफ्टवेयर कैसे उठाएगा? हार्डवेयर के ऊपर एम्बेडेड होगा, एम्बेडेड के ऊपर वाईफाई कनेक्ट होगा, वाईफाई से कोई भी डेटा कंज्यूम कर सकते हो. और उस सॉफ्टवेयर के अंदर सेंसर्स होंगे. आपको किस तरीके के सेंसर्स चाहिए? साउंड बेस, टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, बाकी बहुत सारे सेंसर्स, राइट? So that's what connected device is all about. And if you talk about InCubeSense, connected devices कैसे करें, it's just pretty simple. हम लोग कर रहे हैं, right? That's what I wanted to hear. Yeah, we are doing it. I mean, अब हमारी जो नीश है, अब आप बोलोगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट है. So we are amalgamation or a combination of hardware and software both. आपको नहीं पता, बट मैं ये लाइन ऐड कर देती हूँ. बहुत सारी कंपनीज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वेंडर मैनेजमेंट. अब होता क्या है, अगर मैंने इस कंपनी से हार्डवेयर ले लिया और इस कंपनी से मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया, बट ये आपस में बातचीत ही नहीं कर पा रहे, दैट्स अ प्रॉब्लम. सो इंटीग्रेशन of any of the hardware vendor to any of the software, integrating it together is a big challenge in all the places. So what happens, हम लोग कैसे इसे सॉल्व करते हैं? हम लोग खुद ही का हार्डवेयर बनाते हैं और खुद ही का सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो आपस में इंटीग्रेट होता है. प्लस जब आपका हार्डवेयर जा रहा है सीधे सॉफ्टवेयर में और क्लाउड में, इधर से आप उसको किधर भी भेज सकते हो यूजिंग APIs, right? You can share anywhere. Once the data is captured from a sensor or captured from a hardware unit, it can be sent to the Wi-Fi, which is a cloud, which is connected to the internet, and the data will be utilized anywhere in any firm. So in CubeSense, here we are doing everything. We are doing connected devices. We are doing connecting attendance, people management, maintaining housekeeping, handling assets, and lot many things we are doing. Like if you want to book a hot seating, मतलब आप क्या बोलते हो, hot seat अगर आपको book करना है, तो भी अगर आप घर से ऑफिस में हॉट डेस्क बुक करना चाहते हो, राइट, तो वो भी आप बुक कर सकते हो. एंड वहां पे आके अपना फिजिकल प्रेजेंस आपको देना है, तो आप टैप कर दीजिए हमारे प्रोडक्ट पे, आपका फिजिकल प्रेजेंस हो जाएगा, कीपिंग इंटैक्ट योर प्राइवेसी, व्हिच इज यू डोंट हैव टू डू फेस और एनी ऑफ दिस स्टफ. सो यू कैन यूज योर फोन एंड यू कैन डू दैट, right? So that's pretty much how we are connected and how we are helping customers by a connected ecosystem. Over to you, Khushi. So are you willing to expand IoT into like IoT houses, IoT buildings? Because you must be knowing, you must be following Elon Musk. Finally, we got his name into this conversation, but he is planning something bigger. He has said over and over again that he will bring automated buildings, automated house. When when an earthquake would come, the house would be capable enough to protect itself and stuff like that. So are you also visualizing something that big? Okay, that's a very good question, Khushi. Thank you for asking. First thing, let me tell you the reality aspect. India में बहुत सारी, अगर हम दिल्ली की ही बात करें, दिल्ली में जमीन कम है,
घर बहुत ज्यादा है। तो अगर सोल्यूशन हम बात करें क्रिएशन, सो ये मेरा लैंड है और इस पे मैं कुछ नया बना रही हूँ, तब तो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट होगा। बट क्या हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक फ्री बना सकते हैं? So that's one aspect of looking towards a situation or a solution for existing infrastructure. अब मैं सारे घर को तोड़ के नया तो नहीं बना सकती, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, राइट? सो अगर हम रियलिटी में बात करें, कर सकते हैं। हाइपरलूप है एक न्यू कॉन्सेप्ट, बहुत बहुत कुछ है। बट यहाँ पे दो मेजर चीज है जो हमें देखना है। फर्स्ट, कंट्री डेमोग्राफिक इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड, विच इज इम्पोर्टेंट इन द कॉस्ट एंड द टाइम। यहाँ पे मेट्रो बनने में ही इतना समय लगता है और इतनी ज्यादा रश हो जाता है, ट्रैफिक हो जाता है, तो आई थिंक लोगों को परेशानी हो रही है। वो पहले भी जी रहे थे जब फोन नहीं था, वो पहले भी जी रहे थे जब गूगल मैप्स नहीं थे, भाई लोगों से पूछ लेते थे। तो आई थिंक ओवर इंजीनियरिंग, आई वुड नेम इट ओवर इंजीनियरिंग, इतनी जरूरत नहीं है जितना हम ओवर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। चीजों को, हर चीज को कर दो, हर चीज। आई थिंक मीटिंग पीपल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आई वुड अप्रिशिएट कि अगर मैं खुशी से मिलती, उसके उनका एनर्जी फील करती, तो आई फील वेरी मोटिवेटेड एट एंड ऑफ द डे आई एम गिविंग अ सेशन। आई एम अ कंप्लीट फेस टू फेस पर्सन। आई हेट गिविंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ऑनलाइन। आई completely not. I deny that. But still, I think coming back to the context, it is important to think exactly similar. अब ऐसा नहीं है कि मैंने इंडिया में एक रोबोट खड़ा कर दिया। खुशी, will you love to talk to a robot right now? You will not. हम ऐसी चीज बात कर ही नहीं रहे हैं जो अभी की करंट सिचुएशन की प्रॉब्लम है। आर वी क्रिएटिंग मोर जॉब्स? आर वी क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ एनवायरमेंट टू लिव? वी डोंट नीड सुपर फास्ट कार्स। लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे ऑटोमेटेड होम्स में? Think about that. They always talk about Indian demography. We have to think about US already settled hai, Dubai already settled hai. हम वहाँ बात करें तो they have money. People should have money to spend more, right? अब बात करें अगर हम corporate segment में अगर इतनी fancy चीजें लगा दे, अगर लोगों के पास बजट ही नहीं है, कौन आएगा उधर? अगर आप लगा दो 1 करोड़ का actually make revenue out of it, right? So that's one problem where we have to look forward. हमें अडैप्शन पे भी ध्यान देना है। अडैप्शन मतलब अगर रोबोट है, क्या भारत रोबोट के लिए भी तैयार है? और क्या उतना सशक्त प्रणाली है हमारे पास? No, we don't have right now. Yes, it is becoming day by day better. I can say that. But right now, if I say कि रोबोट के साथ हम लोग कर देंगे और एयरपोर्ट पे आप जाते हो तो सारा काम ऑटोमेशन से होगा, ऑटोमेशन cannot replace humans. Let us understand this कि ऑटोमेशन इंसानों को कभी रिमूव नहीं कर सकता। इंसानों की टच और इंसानों की समझ एक ऑटोमेशन मशीन में नहीं होगी। जिस दिन आ जाएगी उस दिन टर्मिनेटर सच हो जाएगा। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड इन अ रॉन्ग वे टू एक्चुअली किल ह्यूमैनिटी। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग दैट वी शुड लुक। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं ऑटोमेशन इन टर्म्स ऑफ IoT कनेक्टेड एनर्जी सेविंग कंजम्पशन, तो ये कुछ नया नहीं है। Lot of companies have already doing it. In Indian startups are already doing in consumption of saving energy, saving a lot many things. They are doing it. Buildings में sensors लगा के place allocate, light बंद कर देना, ये सब कर रहे हैं। पर reality में अगर हम बात करें, challenge is not making it. Challenge is sustaining it. That is the challenge. When we talk about sustainability, make करके कुछ भी चीज बना देना is not sustainable. Sustainable comes where people adapt and people are happy to use it. And that's where sustainability come into picture. Aaj bhi, if I tell you today's example, people are okay to use phone. Only youth. If I talk about senior citizen, वो बोलेंगे Paytm क्यों करना? Let me go to bank. Let me go to my friend's place, have a cup of coffee and sit and enjoy and have a discussion, right? So I think you cannot, आप छीन नहीं सकते लोगों की जो क्लोजनेस है, आप रिलेशनशिप नहीं छीन सकते टेक्नोलॉजी से, आप उसे बेहतर बना सकते हो। अब आप एक बात बताइए खुशी, अगर मैं बात करती हूँ ऐसे Amazon Alexa बनाया या काफी चीजें नई बनाई जा रही हैं, राइट? बट आप एक बात बताइए, उसमें नया क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट ना। उसमें नया क्या है? आप फोन के गूगल से वॉइस भेज सकते हो। फोन में गूगल वॉइस है या कोई भी वॉइस है, वॉइस कुछ नहीं होता। अब वॉइस लेने के लिए आप फोन भी यूज करो, फिर आपने प्रोडक्ट क्यों लिया? जब आप फोन से समझ आई जब नया Alexa आया था, and there was a lot of craze in the market. Everyone was buying Alexa and everyone was like, wow, we are playing the music, it can play the music to us.
Yeah, it was also, Yes. you know, I can do it on my mobile also. I'll say, hey Alexa, play this, and it will play for me. And people should know the simplicity out of it. जैसे गूगल हर चीज सिंपल कर देता है, राइट? हम लोग वॉइस की बात करते हैं, अगर मैं बोलूं बंद कर दे, तो आपको नहीं लगता मोटापा बढ़ेगा इससे? ओबेसिटी प्रॉब्लम वैसे ही है भारत में. अगर हम थोड़ा चल के लाइट्स भी ऑफ नहीं करेंगे तो अगेन विल गो ओबेस. इफ वी टॉक अबाउट घर में रहने वाला सिस्टम, ऑफिस में इट्स गुड, बट अगर घर में हम सारी चीज ऑटोमेट करेंगे, अब जिम भी हमें खुद ही पैर से जिम चला दे. So I think we should demarcate over access, over engineering and actual helping engineering. हमें वो demarcation ढूंढना पड़ेगा where we have to say stop. We don't need it, man. We should say stop. ऐसा नहीं आपके पास अफराद पैसा है तो आप कुछ भी बनाओगे बिकेगा, ऐसा नहीं होता. आप खुद सोचो, Amazon Alexa आया, फिर Google Home ने किया, फिर बहुत सारे लोग उसमें कर रहे हैं, पर क्या जरूरत है? हम लोग वॉइस कन्वर्ट जब होता है वो टेक्स्ट ही तो बनता है, और टेक्स्ट जाता है गूगल सर्च में और सर्च करके आपको रिजल्ट देता है. क्या एक्यूरेसी है इसमें? तो मुझे still buying those products. That is the big question. Yeah, it looks fancy. So people are going towards fanciness, and a lot of cases you can create. So I think just to conclude this question, Khushi, I think people should know where to stop. This is not innovation. This is over engineering concept. So you should also stop where it is not required at all, because it's going to corporate आपको पैसा खरीदेगा. Corporate will consume. Corporate don't have money to consume. Why they will consume something which is like useless, I would say. उनको नहीं चाहिए. So हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट को कितना चाहिए और इंसान मतलब यूजर्स को कितना कब चाहिए, which is necessary and over necessary and fanciness. So I think that is something where we should take a stand and say yes or no to the product. Over to you, Khushi. And thanks a lot for this explanation. That was something that I think that haven't said on the internet till now, the difference between over engineering and innovation. No one have covered this because everyone is in that mindset of selling the stupid innovation they claim. So thanks a lot for making a clear demarcation. So the next question for you is, we are just left with the 3 questions. So thanks a lot for your cooperation. So no problem. You have focused on the importance of designing the product to give it a luxurious look multiple times in your talk. So what was your vision to give that same luxurious look to your products, and how did you went for it? Okay, so usually what happens that आप कोई भी चीज innovate करो, it should be packaged well. जैसे हम लोग इंसान हैं, हम लोग पैकेज हुए हैं बॉडी में. मैं आपको बिल्कुल नेम में बताती हूँ. हम लोग बॉडी में पैकेज्ड हुए हैं, और हमारी ब्यूटीफुल स्माइल हमें और खुशी से हमें बहुत अच्छा बनाती है, अच्छा दिखाती है, राइट? एंड वी हैव टू से वेल ग्रूम्ड. तो अगर एज अ बॉडी, एज अ पर्सनालिटी, वी नेम इट एज वेल ग्रूम्ड. सिमिलरली एक हार्डवेयर इसकी बॉडी है, राइट? और इसे हमें वेल ग्रूम करता है उसका डिजाइन, उसका पैकेजिंग. सो आई थिंक मेरे लिए बहुत जरूरी है एक नॉर्मल बहुत ब्यूटीफुल पैकेज, और अननेसेसरी डिटेल्स को हटा देना. मतलब अननेसेसरी चीजों को हटा देना. अगर मेरे जैसे आप देखते हो सर्च में, राइट, आपको बाकी कुछ दिखेगा तो आपका ध्यान उधर जाएगा. आपका ध्यान जहां पे कंज्यूमर का ध्यान आपको लेके जाना है, आप बस उनको उतना दिखाओ. नो एक्स्ट्रा AYZ. You just showcase what is actually required. Second, अब अगर हम हार्डवेयर, अब यहाँ पे बात आती है एक्चुअल इनोवेशन की, which you should actually don't cut. Actual innovation, when we talk about the best, yeah, okay, the best innovation and the bestest part of anything that you design is making the small, the factor, जिसे हम form factoring कहते हैं उसको, small. अगर किसी बंदे ने किसी भी फॉर्म फैक्टर को smallest of the small कर दिया, that's where innovation happens. Hence the reason when you do a little bit of research, lot of attendance machine is bulky, it is mota, it is so heavy, right? But हमारा बिल्कुल ही iPhone से भी less है, which is like less than grams में अगर आप बात करो, तो we have a video on YouTube which is less than an iPhone. That is what the weight of our product is. But the only thing that we should understand is the product should look good, it should look sleek. और अब यहीं पे most of the companies will fail. I would say fail. The reason that उसमें पेन लगता है, उसमें क्वालिटी लगता है, उसमें दिमाग लगता है. जब आप सपोज करो कि ये मेरे पास बॉटल है, अब मेरे को इसे बहुत छोटा करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है बाय द वे, अब मुझे इसे छोटा करके इतना सा बनाना है जितना इसका ढक्कन है. बताइए कैसे होगा? यहाँ आता है एक्चुअल इंजीनियरिंग, वेयर स्टैक फ्लो ओवरफ्लो डजंट हेल्प,
where most of the forums or communities doesn't help. यहाँ पे आपकी काबिलियत हेल्प करती है और आपका ब्रेन हेल्प करता है कि इसे डिजाइन कैसे करें. So I think these 2 pointers are very important. Small form factor has to be small, that looks classy. The outer packaging has to look minimalistic. अगर बटन्स नहीं है, मेरे से काफी कस्टमर बोलते हैं दीक्षा आपके प्रोडक्ट पे बटन्स नहीं है. मैंने बोला क्यों देना बटन्स? No need. You don't need buttons to configure. You can configure on the net, right? If we talk about IoT, why we give buttons on the phone itself? Yeah. I mean on the device itself, right? तो हमारा बिल्कुल ही sleek है. कुछ आपको करना नहीं, आप लगाओ, plug and play करो, खत्म हो जाता है आपका. I think yes, that's important. और खुशी सबसे important. अब मैंने ये तो बता दिया, but इसका real picture कैसे होगा? अब मैंने खुशी को बोला, खुशी this is my product. आपको बिना गाइड बुक के समझ आ जाना चाहिए. You don't need a guidebook to actually explain your product. And when you make your product so much easy, so much helpful for customer, you don't need anything else. So that's final take. Over to you. So compact packaging is the key to give a minimal look and a sleek look to your product. Yes, absolutely true. Yeah, so, go ahead. Now we are on the last question. I feel sad to be at the last of this episode. So lastly, a message to young girls and women to ignite the inner passion to chase their real purpose. Okay, let's talk about purpose. ये question बहुत closer to me, but let's talk about purpose. होता क्या है? For you, what's your purpose, खुशी? अगर मैं बात करूँ कि मैं purpose क्या है, तो आपके लिए purpose क्या है? What's your purpose? Making an impact through my words, through my writing. Wow, super. So making an impact to your words and your whatever you do basically, आपके काम पे काम को impactful तरीके से करना और उससे impact create करना is your purpose, correct? Purpose definition में लोग काफी चीज फंस जाते हैं जो मैं उनको बताना चाहती हूँ. Purpose जो आपको दिल से खुशी दे, आपके बैंक बैलेंस में खुशी ना दे, आपको दिल से खुशी दे, that is your purpose first. Second thing to understand what is your real purpose is जब आप किसी काम को करने के बाद, जैसे मैं ना आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. एक प्लेन पेज लीजिए. When people talk about what is purpose, Google और books में बहुत कुछ लिखा है, but this is a very quick thing that we should do it. Take a plain page, do a little demarcation. 2 sides बन जाएंगे आपकी. Left side is what you really want to do, and right side is again what you really want to do. So 2 जगह पे आपने लिखा. Say for example, if you talk about me, I love dancing and programming. तो मैंने दोनों ही डाला, पर उसमें आपको पैशन उससे ज्यादा क्या है, मतलब पैशन आपका कहाँ पे है, राइट? तो पैशन होगा आप डांस को 5 दिन करो लगातार, और आप प्रोग्रामिंग 5 दिन करो लगातार, और अपने उधर ऑब्जर्वेशंस लिखो कि डांस करते वक्त मैं थक गया या मुझे अब नहीं करना, मुझे नेक्स्ट वीक से आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, राइट? सो और फिर प्रोग्रामिंग की तरफ लिखो. तो मैं अगर अपने एग्जांपल बोलूं तो प्रोग्रामिंग में मैं भूल जाती हूँ when to have our tea, milk, कुछ भी नहीं याद रहता है, no washroom, nothing, keep on doing it, and that's your passion. जिस चीज में, जिस काम करने में, चाहे वो लिखना हो, आपको स्पीकिंग हो, या किसी भी चीज में आप खुद को भुला दो, आप खुद की चीज भुला दो कि मैं कहाँ बैठा हूँ पता नहीं. if I'm giving speaking to 1 person or I'm giving speaking to 100%, it should impact, it should create goosebumps. वो होना चाहिए. जिस दिन आपको ये समझ आ गया और आपने खुद को भुला दिया जिस काम में, वो आपका लाइफ का पर्पस है. That's your purpose of the life. So I think that's what made me realize that this is my purpose. आप इंडिया को आर्मी के थ्रू तो सर्व करते हो, अगर आप आर्मी में जाते हो, कर्नल बनते हो, which is really good. पर अगर आप करना चाहते हो सर, तो अपने काम से भी आप सर्व कर सकते हो. आप अच्छा काम करिए, आप लोगों के लाइफ में चेंज करिए, लोगों के चेहरे पे खुशी लाइए, and then it's going to happen. I think this time the real purpose should be compassion. And अपने काम के लिए तो compassionate हो ही, पर आप दूसरों को congratulate करो, दूसरों की खुशी ढूंढो और दूसरों को खुशी करो. I think उनके लिए live for people, okay? हर लोग अपने लिए जीते हैं. I think you should live for people. The moment you do that, you have the real purpose of your life, and then आपको कोई नहीं रोक सकता लाइफ में आगे बढ़ने से. Coming back to the next question, Khushi, that you talk about for women, which is I completely respect my people, all my human being, but I'm very close to my women community. I think जितना भी मैं कर पाऊँ उनके लिए कम होगा, but मैं चाहती हूँ और वुमेन शक्ति आगे आए और हम एक दूसरे के लिए, वो कहते हैं ना, साथ में खड़े रहें, साथ में प्रोत्साहित करें. तो वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है, I won't take much time, but वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है that हमेशा लड़कियों को प्रूफ करना पड़ता है अपनी काबिलियत,
अपना हौसला क्यों, और कुछ अगर कुछ यूनिक कर दो तो लड़कियों को भी एकदम अलग से बोला जाता है, जैसे वो होता है ना कि तुमने बहुत कुछ अच्छा किया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ये जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल आ रहा है, आपकी और मेरी जनरेशन मिलके चेंज ला रही है। पर मैसेज टू एवरीबडी आउट देयर, बी असर्टिव, बी वेरी अप लिफ्टेड, मतलब खुद के अंदर प्रोत्साहित रहे और दूसरों को भी प्रोत्साहित दे, बिकॉज वुमेन के साथ ना एक बहुत एक उम्दा शक्ति होती है उसके अंदर, वो ऑलरेडी बहुत शक्तिशाली है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। शी herself, each and every woman or a particular single woman is herself is very successful, आत्मनिर्भर, और सब कुछ वो खुद है। इस जस्ट कि हमें अपनी आंखों पे से पट्टी हटानी है, धूल धूल हटाना है, और अपने आप का सही चेहरा देखना है अपनी शीशे में या जैसे भी आप देखते हैं। आई थिंक आपको अपने अंदर वो बोलते हैं ना, सरस्वती, माँ दुर्गा और काली दिखेंगी, ट्रस्ट मी वो दिखेंगी। सो जिस समय आपको ये तीनों दिखने लगे आपके अंदर, उस दिन you are all rounder, you are Wonder Woman, and you can achieve anything in the world that you can. And why I said three, माँ दुर्गा, सरस्वती एंड काली, मैंने ये इसलिए बोला, चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोल सकते हो, पर मैंने ये तीन थिंग इसलिए बोला क्योंकि एक होता है डिस्ट्रॉय करता है, सिर्फ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रक्शन विल क्रिएट न्यू कंस्ट्रक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। आदमी मरता है तो नया जन्म लेता है, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो तो आप गिराते हो, नई बिल्डिंग बनाते हो। तो डिस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा रूप जो फॉर्म ऑफ ह्यूमन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज चलाना, जिसको बोलते हैं ना विष्णु जी चलाते हैं, या तो ऐसा, तो वो चलाना, आप चालन अपने, यू हैव द स्टीयरिंग आपके खुद के हाथ में, दूसरे के हाथ में मत दे दीजिएगा, आपको स्टीयरिंग अपने लाइफ के खुद के हाथ में रखना है। सो दैट्स सेकंड। थर्ड थिंग, एंड वेयर टू स्टॉप, वेयर टू टेक अ पॉज, वेयर अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो आप स्लो कर देते हो गाड़ी और फिर चढ़ाते हो, आप सीधे चढ़ा दोगे तो आप गए। तीसरा थिंग आता है सरस्वती, विच इज आपको उतना चीजें कैरी करना है, आपको लगातार पढ़ना है, लर्न करना है और चीजें आगे लेके जाना है। सो आई थिंक अगर हमने ये तीन चीजें अपने अंदर कर लिया, यू बिकम अनस्टॉपेबल, अबंडेंस में आप जियोगे और nobody can stop you. So that's my final take to all the people out there. Yes, That was Khushi. so powerfully wrapped up. That was so beautifully wrapped up. Thanks a lot for coming on to the women's stories and just enlightening the whole aura. I really had a great time while talking to you, and I hope that you had the same. You had the same feeling while having this conversation. And I really hope for a long-lasting relation with you. And I'll be in contact with you, and I'll contact you whenever I would be needing help from you. I'm always here for you, Khushi. No problem. Keep me in your books. And मैं हमेशा अपने प्यारे फ्रेटर्निटी के लिए हमेशा हूँ, वुमेन के लिए हमेशा हूँ, सभी लड़कियों के लिए हमेशा दीक्षा is always there for them. So on the ending note, I think take this as a takeaway from this whole session. Be unstoppable. कभी भी अपने आप को न रोके, और किसी भी काम में 10,000 बार गिरे यार, 10,000 बार गिरे, 20,000 बार गिरे, बट उठना ना भूले। जिस दिन आप उठना भूल गए उस दिन आप फेल हो, वरना फेलियर कोई चीज नहीं। थैंक यू खुशी। Thank you, Diksha. So, Diksha, the recording has stopped. Before ending this session, I would request you to send me your two pictures for the marketing purposes, one formal and one casual. And your podcast will be out on the last, that is 30th March, the last Friday of this month. And I'll share you all the links and the final edited podcast with you. Yeah, you can share before sharing. I will see and definitely give you feedbacks.